کون ہے جو آ کر سب غم مٹا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آ کر سب غم مٹا رہا ہے؟ اللہ کا نام لے کر مرہم لگا رہا ہے۔ اور یہ شاہ صاحب کی دعاؤں سے وینٹیلیٹر سے بھی ناک ہوئے تھے، اس دن شاہ صاحب نے دعا کی تھی ماشاءاللہ۔ دیوان چل رہا ہے، بروان چل رہا ہے، دیوان چل رہا ہے، پروان چل رہا ہے، خون جگر سے دیکھو شمع جلا رہا ہے۔ اب فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، بس اللہ وہ اوپر پڑھتے رہنا، یہ کسی کو دے دیں پھر شمع جلا رہا ہے۔ اللہ کی نوکری میں، اللہ کی چاکری میں، خون جگر سے دیکھو شمع جلا رہا ہے۔ اللہ کی نوکری میں، اللہ کی چاکری میں، خون جگر سے دیکھو شمع جلا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو سید ہونے کے باوجود، دنیا بھر میں عزت و تکریم کمانے کے باوجود خود کو مٹا کر اس عاجزی اور خلوص کے ساتھ اس دکھیاری مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ہر جگہ اللہ اکبر کے نعرے لگوا رہا ہے؟ سارے مل کے ایک نعرہ لگائیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے جائیں۔ سید بابر حسین شاہ بخاری کی دعا میں تاثیر ہے، میں خوش نصیب ہوں جو ان سے علاج کروا رہی ہوں۔ جو اللہ اکبر کا پیغام لے کر ساری دنیا میں گھومتا ہو، اس کا اللہ سے رشتہ کتنا گہرا ہوگا، اس پر اللہ کا کتنا کرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی نوکری میں، اللہ کی چاکری میں، سوئے ہوئے نصیب، سید جگا رہا ہے۔ سید بابر حسین شاہ بخاری صاحب نے سالوں کی تحقیق اور دنیا کی بہترین گلوبل ریسرچ سے گلیریسیڈیا CPM سے کسان دوست فارمولا بنایا۔ اللہ اکبر کے ورد کی ترویج کے ساتھ اسے 1 سال پہلے کوٹ رادھا کشن کے گاؤں میں گلوبل ولیج ماڈل فارم اور اس کے آس پاس کے زمینداروں کی فصلوں پر استعمال کیا۔ 4 مختلف فصلوں پر پورا سال یہ فارمولا استعمال کیا گیا۔ سارا اتو پٹیچا سارا جڑا بھی پٹی گیا نے ادھر ویل لو اندا دیندا زمین اسمان دا فرق آ رہا ہے سامنے آ ٹھیک ہے ہن دے تھلے کوئی جڑ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اے دی جڑ دیکھو
ہاں جی ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਝਾੜ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਓ और नतीजतन पैदावार में तकरीबन 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये मेरे आ रहा है तकरीबन यहाँ पे और ये खत्म हो गया यहाँ। जायद इजाफी फसलों को शाह साहब ने उसी इलाके के जरूरतमंदों में तकसीम करके मुनफरिद तारीख रकम कर डाली। खुशहाली के लिए अरमानों के लिए आज और कल सब जमानों के लिए किसान दोस्त फार्मूला किसान दोस्त फार्मूला बुखारी साहिब लेकर आए किसान दोस्त। ये जितने मर्जी सिट्टे चेक करें, हर एक का साइज एक से दूसरे से बढ़कर है। ये देखें, ये 7.5 इंच पे इसका साइज। किसान दोस्त फार्मूला बुखारी साहिब लेकर आए। वाह शाह साहिब, जो भी आया अपने मतलब से आया। तू पहला बंदा है जो लेने नहीं देने आया, बांटने आया। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत की खिदमत करते हैं। उनका मकसद अल्लाह की खुशनूदी होता है। वो दुनिया नहीं कमाते, आखिरत कमाते हैं। उन्हीं में से एक है ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नौकर सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी। बुखारी साहिब लेकर आए। किसानों के लिए मैंने जो दर्द दिल सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी में देखा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कौन है जो खुद कुछ ना कमाए और अगर कमाए तो सब कुछ उसी इलाके में बांट दे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ਅਗਰ ਸੈयद ਹੱਕ ਤੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट पूरा गांव और पूरा पाकिस्तान देखेगा। मेरे लिए ईद का दिन है क्योंकि आज मैं अल्लाह का नौकर बन के जा रहा हूँ और इसलिए नौकर बन के जा रहा हूँ कि उसी अल्लाह की वजह से ये कामयाबी मिली है। क्योंकि मैंने तो मालिक से मांगा ना, तो दुनिया से जब मांगता रहा कुछ भी नहीं मिला, तो जब अल्लाह से मांगने का पता चल गया ना, तो आज नौकर बन के एक नौकर जा रहा है। हर दिल में दर्द जगाया रब का दीवान बनाया। अल्लाह अकबर का आलम में नारा लगाया। सैयद बाबर हुसैन बुखारी सैयद बाबर हुसैन बुखारी सैयद बाबर हुसैन बुखारी सैयद बाबर हुसैन बुखारी सैयद बाबर हुसैन बुखारी। ले लेके फिरता है वो ले लेके फिरता है वो ले लेके फिरता है वो खुशहाली के। अल्लाह का नौकर बनना आसान बात नहीं है। सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी ने साबित किया है कि वो अल्लाह के बंदे और नौकर हैं। हर दिल में दर्द जगाया हर का दीवान ले लेके फिरता है वो ले लेके फिरता है वो खुशहाली के पैगो खुशहाली के पैगो। शाह साहब का मोटो जो है वो यही है कि बेरोजगारों की और मुस्तहिक अफराद की बेरोजगार लोगों की जो है मदद की जाए, बेलौस मदद की जाए। उन्होंने कहा अगर अल्लाह खैर करे जिम्मेदारों की फसल दुगनी
मुस्तहिक अफराद, गरीबों और मस्कीनों के दरमियान तकसीम करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हाँ, मुझे याद आ गया, शाह साहब एक दिन आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई बीबी आई, उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। तो शाह साहब ने मुझे, उस दिन भी शाह साहब की आंखें नम हुई। शाह साहब ने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कोई भूखा ना सोए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि किसान दोस्त फार्मूला इस दफ़ा तमाम दोस्त इस्तेमाल करें। ये मलक इफ्तिखार ये बाहर से नहीं है, पूरे गांव को पता है कि ये अपने गांव से है। आपको पानी में कितना फर्क नजर आया, लोगों ने कितने पानी लगाए और आपने कितना पानी लगाया है? सिर्फ 4 पानी, मुझे पकने कितना 4 पानी, ये देख लें तो लेकर 4 पानी। मलक साहब आप जरा बताएं, आपने जो एप्लीकेशन की थी उसमें क्या फर्क हुआ और आपने कितनी खाद डाली और क्या सूरत? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे जो मकसद है ना अल्लाह अकबर का एक रिजक को हलाल करने वास्ते जिथे भी अल्लाह अकबर का नाम देना, जो रिजक पे जाके पढ़ो वो हलाल होता है। माशाल्लाह गौरव साहब ने बहुत माशाल्लाह जी, शाह साहब ने इतना बहुत अच्छा जो है फार्मूला भी बेहतरीन अच्छा है। एक दिन शाह साहब तशरीफ लाए, शदीद गर्मी थी, तो शाह साहब ने कहा जी फसलों पे जाना है, रास्ता तंग था। मैंने कहा शाह साहब मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, चले आप उसमें जाए। शाह साहब ने कहा अगर बाकी लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो राणा साहब मैं गाड़ी पे नहीं जाऊँगा। हम 20-25 लोग थे, शाह साहब हमारे साथ मोटरसाइकिल पे सवार होके तो हमारे साथ तमाम फसलों पे गए। मैं दिल से सल्यूट पेश करता हूँ। और ये जो आज हमारी महफिल है ना, ये अल्लाह के नौकरों की महफिल है और इस महफिल को स्टार्ट करने वाले, इसका ये जो माशाल्लाह आज एक मुकम्मल हाल आप देख रहे हैं, ये सारा सेरा सैयद बाबर बुखारी साहब के साथ है। इन्होंने अल्लाह का नौकर बन के जो भी काम किया है, इन्होंने यही कहा कि मैं अल्लाह का नौकर हूँ, मैं अल्लाह का फकीर हूँ, मैं एक फकीर बंदा हूँ। और इनके ये अल्फाज इंसान के सख्त से सख्त दिल को छू लेते हैं। सैयद बाबर बुखारी साहब जो है बेसिकली तो वो अपनी तारीफ करने नहीं देते किसी को। वो कहते हैं मेरे सामने तारीफ करनी है तो अल्लाह की, और ये महफिल भी है अल्लाह की, अल्लाह के नौकरों की। मैं आज से 1 साल पहले अपनी गंदम की फसल मैंने काश्त की थी, तो सैयद बाबर बुखारी साहब ने ये जो आपके सामने किसान दोस्त फार्मूला रखा हुआ है, ये किसान दोस्त फार्मूला तैयार किया। और वाहद मेरा 1 एकड़ था जिसके ऊपर हमने एप्लीकेशन की, तो मेरी वो जमीन तकरीबन 11-12 मन 3 एकड़ की औसत देती थी। जब मैंने सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया, अल्लाह अकबर करते रहना है, तो मैंने ये तरीका अपनाया, तो माशाल्लाह मेरा वही एकड़ 41 मन पे चला गया। आज माशाल्लाह ये जो अनाज का ढेर लगा हुआ है, ये सैयद बाबर बुखारी साहब इस गांव के अंदर, इस हल्के की, फूलनगर हल्के की गरीब आवाम के लिए लेके आए। देखो जो दसना है मलिक साहब हलफन दसना है, कितनी देरी में एकड़ की फसल आई है? माशाल्लाह बहुत 53 मन तक आ गई। ते बाकी तेरे नाल जिन्हां दा मुकाबला सी ईमानदारी नाल दसना है। वो तो बस 20-22 मन, किसी 15 मन, किसी 14 मन, बस इतनी। शाह साहब ने अल्लाह अकबर के नारे लगवा दिए, हमारे गांव की फसलों की पैदावार को दुगना कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक ते अपना जरा जमीन ते जाइए ना, साडी जुबान ते अल्लाह अकबर होनी चाहिए, ते फिर बरकत देखना इंशाल्लाह। जे उन्होंने जिम्मेदार को एक मन मुंजी मंगी सी ना, ते ए जेड़ी अंदर गरीब बीबियां बेवा बैठियां ने, अल्लाह की कसम इन्हां वास्ते मंगी सी, आंदे वास्ते नहीं मंगी। असी किसान दोस्त फार्मूला अपनी फसलों ते पाना है और सारा सी ये पावांगे ते गरीब आवाम दा भला होएगा।
ਸ਼ੈਤਾਨਿਰਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ MPMN ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਹੈ ਮਲਕ ਇਫਤਖਾਰ ਖੋਖਰ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਇਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200-250 ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ये फार्मूला एक इंकलाब ले आया। किसान दोस्त फार्मूला कमाल है। पानी की बचत, खर्चा कम, नरम जमीन, दुगनी पैदावार, भारी दाने। इसने जमीन को नर्म किया, इसकी तेजाबियत और असासियत को मयारी किया, फसलों की गजाइत को बढ़ाया, खादों के असर को बढ़ाया, पानी के ठहराव को बढ़ाया, यानी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। नतीजा क्या हुआ? पानी की बचत हुई, रोटावेटर के इस्तेमाल में कमी आई, जमीन की तैयारी के इजाफी इखराजात में बचत हुई। जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया देखती है। इसी तरह किसान दोस्त फार्मूला ने किस तरह पैदावार बढ़ाई, ये पूरी दुनिया ने देखा। हर पौधे की जड़ लंबी, घनी और गहरी हुई, फसल की उठान ज्यादा हुई, दाने वजनी हुए, फसल की सेहत अच्छी तो कुव्वत मुदाफियत अच्छी। सख्त मौसमी असरात के खिलाफ फसलों ने खूब मुकाबला किया और इन सब अवामिल का नतीजा क्या हुआ? हर फसल की पैदावार ज्यादा हुई, कहीं दुगनी और कहीं 2 गुना से भी ज्यादा हुई। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਧੇ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। जिन जमीनों की हालत अच्छी ना थी उनमें अच्छी जमीन से ज्यादा पैदावार हुई। जो रकबे जेरे आब आकर तबाह हो गए उनमें फसलों ने फिर से सर उठा लिया। जिनमें 5 पानी कम लगे वो भी पैदावार में सबसे आगे निकल गईं। जहां बावजूद खाद कम और जमीन की तैयारी भी हल्की की गई, वहां की फसलों की पैदावार ने सारे इलाके में रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जल्द ही किसान दोस्त फार्मूले के हैरान को नताइज देखकर उसे इस्तेमाल करने वाले काश्तकारों की तादाद भी बढ़ गई। ਬਾਬਰ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਲਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ, और कोई चीज नहीं पाई।
ਇਹ ਸੈयद ਬਾਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਝੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਗੁੱਠਾਂ ਕੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਮੈਂ ਝਾੜੀ, ਮੇਰੀ 35.5 ਮਣ ਮੁੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਝਾੜੀ, ਉਹਦੀ 28 ਮਣ ਹੋਈ ਮੁੰਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾਣੇ ਇਸਲੀਮ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਉਹ 12-13 ਮਣ ਹੋਈ 1 ਏਕੜ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 35.5 ਮਣ ਮੁੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25-26 ਮਣ ਝਾੜ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। अगर इस फार्मूले ने ये जमीन का मेदा ठीक किया है तो ये गंदम का दाना इंसान का मेदा नहीं ठीक करेगा। पिछली वीडियो आप सैयद बाबर बुखारी साहब की देख लें, यूट्यूब पे लगी हुई है, तो जब आप वो गंदम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। ऐसा ना हो कि कोई समझे कि ये पता नहीं दूसरा एकड़ है, ये वही एकड़ है जिसमें किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है। मैं भी किसान शुरू से ये काम कर रहे हैं, ऐसा रिजल्ट मैंने नहीं देखा। ये चंद दिनों में जो कोई चीज किसी पे अप्लाई करें वो भी ऑर्गेनिक। ये मेरे काश्तकार भाई खड़े हैं, आरफ है, ये तकरीबन 20 साल से हमारे साथ है। आज तक ऐसी गंदम इस एकड़ में किसी भी काश्तकार ने ये नहीं कहेगा कि आपकी ऐसी गंदम। ਆ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 64 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ। 64 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। जब भी आप देखेंगे इसको मंडी में पड़ी हुई सब्जी को ये अलग नजर आएगी। इसकी चमक और इसकी फ्रेग्रेंस जो है इंतहाई आला और इंतहाई खूबसूरत देखने में मंडी में नजर आती है और इस्तेमाल में तो कमाल की चीज है। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲਓ। और कमाल तो ये है कि चश्मे जमाना गवाह ठहरी कि जो भी ज्यादा पैदावार हुई वो वहीं हाजतमंदों में तकसीम कर डाली। ये मंजर देखकर सबके दिल भर आए, हर आंख भर आई और गवाह हुई खुदाई। और ये नजारा उस फलक ने भी देखा। अल्लाह की नौकरी में, अल्लाह की चाकरी में, सोए हुए नसीब सैयद जगा रहा है। और मुअर्रिख की निगाह ने भी देखा। बदले में बुखारी साहब को क्या मिला? अल्लाहु अकबर के नारे, अल्लाहु अकबर का विर्द, अल्लाहु अकबर की सदा, अल्लाहु अकबर की सना। आप शाह साहब का ईमान है कि बांटने से कम नहीं होता। ये अल्लाह का दिया ही तो है जिसमें से अल्लाह की राह में दिया जा रहा है। ये मनसब हर किसी को अता नहीं होता। अपनी और दुनिया की चाकरी सब करते हैं, अल्लाह की नौकरी इस तरह करे कोई तो हम जाने। ये बरकतों और रहमतों का सफर यूं ही जारी रहेगा। सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी यूं ही अल्लाह के रास्ते पर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते करते दुनिया में अल्लाहु अकबर का फैजान बखेरते बखेरते जब तक रज़ाए इलाही है और हुक्म रब्बानी है आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे।